Hello children, today we are going to read about the new chapter, chapter number 4, which is a non-fictional story. Non-fictional story means a story which is based on a true event. And sometimes you may find some of the stories are fictional. Fictional means which is false, means the story which the writer have imagined and then and there he have wrote entire story. But today we are going to read about the story which is non-fictional, means it is totally based on the true event. So the name of the chapter is Children of India, which is written by Ruskin Bond. Now who is Ruskin Bond? He is a very famous writer and he is a British descendant. Actually he is Indian and British descendant, means that means इनके जो मम्मी पापा थे, his parents were basically from Britishers, but since he is residing here in India for so many long years, so now he had got the citizenship of India and now he loved India and he decided to stay in India itself. So it is called British descendant, means his parents were of British. So before I start this chapter, let me ask a very simple question. How do you go to school? So I think if I ask this question, your answer might be by bus, by car, auto, or on by foot. You know? So or might be you might be coming to school with your parents. But here the story is totally different. You may find the children are they are facing so many difficulties, so many barriers, but still they commute to the school. So let's see that there are many children in our country who overcome various obstacles daily to reach their school. Here, overcome means चीजों को हराकर आगे बढ़ना. That is overcome. Various मतलब बहुत अलग अलग तरह के. Obstacle means problems, कठिनाइयाँ. तो when they go to school, so in the path they have to overcome various types of obstacle and still they manage to go to school. So let's see. They pass me every day on their way to school. So the whole story has been narrated by Ruskin Bond. What he's saying that they pass me, who? The small children who go to school every day. So what he's saying that they pass me every day. वो रोज मुझे दिखते हैं on their way to school जब वो school के लिए निकलते हैं. Boys and girls from the surrounding villages and the outskirt of the hill station. Now what is the outskirt? Outskirt means the region, the area which is outer to the village. If I am saying that outskirt of village means village के जो बाहरी area में जो रहते हैं, outskirt of town means जो town के बाहरी हिस्सा है, that is called outskirt. So here you can see that surrounding villages and the outskirt of the hill station means hill station के जो बाहरी area में रहते हैं, from there they come to school. There are no school buses plying for these children. Now what is the meaning of plying? यहाँ पे what they are saying that there are no school bus. कोई भी school bus नहीं है जो इनके लिए facilities plying for these children means इनके लिए facilities avail कर सके so that they could easily go to school. For many of them, it's a very long way walk to school. Means if they go to school, तो क्या बोल रहे हैं कि they have to cover so many long distance. वो पैदल ही काफी दूर तक जाते हैं स्कूल पहुंचने के लिए. Ranveer, who is 10. Now the story has been concentrated to that particular boy Ranveer. Now what is his age? He is of 10 years. Has to climb the mountain from his village. वो कैसे जाता है? अपने गांव से माउंटेन को क्लाइंब करके, माउंटेन पे चढ़ के आगे फिर जाता है. 4 miles distant मीन्स कितना दूर पड़ता है? 4 miles दूर तक जाना पड़ता है. एंड 2000 feet below the town level. और वो कितना है? टाउन से 2000 feet नीचे की तरफ जाता है. यानी टाउन जो है उससे 2000 feet नीचे की तरफ जाता है. मीन्स वो कितनी ऊंचाई चढ़ रहा होगा, आप जस्ट इमेजिन करो. He comes in all weathers, means whether it is hot, whether it is cold, whether it is rainy, he never mind. वो हमेशा मैनेज करता है. देखो बच्चा, आप लोग कभी कभी बोलते होगे ना, मैं बहुत बारिश हो रही थी तो मैं स्कूल नहीं जा पाया, मेरी ऑटो नहीं आई थी, है ना. आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज है. आई नो यू आर नॉट लाइंग, बट देखो ये बच्चे जो है कितने डिफिकल्ट सिचुएशन को भी वो एक तो माउंटेन को चढ़ के क्लाइंब करके जाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और वो भी दे कम्स इन ऑल वेदर, मीन्स चाहे कैसा भी वेदर हो, दे गो टू स्कूल wearing the same pair of cheap shoes until they have almost fallen apart. Fallen apart means जब तक वो फट ना जाए. तो क्या बोल रहे हैं? They used to wear the same pair. हर रोज सेम जूते ही पहन के जाते हैं. आप लोग देखो कभी कभी सैटरडे या किसी किसी स्कूल में अलग अलग डे होता है जिस दिन आपको हाउस ड्रेस पहन के जाना पड़ता होगा, जिस दिन आपको व्हाइट ड्रेस पहनना पड़ता होगा, तो उसके लिए आपके शूज अलग रहते हैं. तो बेसिकली आप वीक में एटलीस्ट 1 या 2 अलग अलग तरह के जूते पहनते ही हैं, है ना. बट थिंक अबाउट दिस चिल्ड्रन,
वो क्या बोल रहे हैं, एक ही तरह का वो शूज पहनते हैं, वो भी बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता क्वालिटी के वो शूज पहनते हैं। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट एफर्ड टू बाई सच अ कॉस्टली शूज। देखो आप लोग पहनते होंगे, गद्देदार शूज पहनते हैं विच इज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, बट इनको कहाँ से मिलेगा, है ना? सो दैट सेम चीप शूज दे यूज टू वेयर इट। तो रणवीर इज अ चीयरफुल सोल, मीन्स वो बहुत ही खुश मिजाज लड़का है। ही वेव्स टू मी whenever he sees me at my window। तो वो जब भी जाता है, मैं अक्सर विंडो के पास ही बैठा रहता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ वेटिंग ऑफ दैट रणवीर, बट बिकॉज ऑफ उन्हें अच्छा लगता है, राइटर को अच्छा लगता है रस्किन बॉन्ड को, यानी बच्चे जाते रहते हैं स्कूल में, द नेचर एवरीथिंग ही लव्स दैट। तो अक्सर वो विंडो के पास में बैठते रहते हैं, तो उनको दिखता है कौन, रणवीर, जब वो उसी समय वो स्कूल भी क्रॉस करता है। समटाइम्स ही ब्रिंग्स क्यूकुम्बर फ्रॉम हिज फील्ड्स, फादर्स फील्ड। तो कभी कभी वो जो है अपने पापा के फार्म से कुकुम्बर लेके आता है, कुकुम्बर यानी कि खीरा, उसके लिए लेके आता है। आई पे हिम फॉर द कुकुम्बर्स। तो मैं जो वो जब लेके आता है, मैं कुकुम्बर उसके लिए पे करता हूँ, उस कुकुम्बर के लिए मैं पैसे उसको देता हूँ। ही यूजेस द मनी फॉर बुक्स और फॉर स्मॉल थिंग्स नीडेड एट होम। और ये पैसे को वो क्या करता है, हाउ ही यूटिलाइजेस इज, तो वो क्या करता है, ये पैसों को ही यूजेस फॉर टू बाय द बुक्स, और समटाइम्स वेरी बेसिक चीज, जो उनको उनको बेसिक चीजें के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए पैसे वो यूज करता है। मेनी ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइक रणबीर। तो डोंट थिंक कि रणबीर इज अ यूनिक पर्सन, कि रणबीर के साथ ही ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु आर लाइक रणबीर, रणबीर की तरह ही गरीब है, एंड एवरीडे दे यूज टू स्ट्रगल लॉट टू गो टू स्कूल, है ना? तो और क्या बोल रहे हैं रणबीर में, क्या, हाउ ही इज पुअर, वो गरीब है, बट स्लाइटली बेटर ऑफ देन व्हाट देयर पेरेंट्स वेयर एट द सेम एज। तो क्या बोल रहे हैं, वो पुअर तो है, बट स्टिल वो अपनी उसी एज में जब उनके पेरेंट्स थे, है ना, वो क्या बोल रहा है देखो, व्हाट देयर पेरेंट्स वेयर एट द सेम एज, मतलब रणवीर के एज में जब उनके पेरेंट थे, रणवीर अभी कितना साल का है, 10 साल का, 10 years का है, तो रणवीर के एज में जब उनके पेरेंट्स थे, उनकी कंडीशन और भी खराब थी। तो रणवीर माइट बी ही इज पुअर, देन ऑल्सो ही इज फार मोर बेटर देन हिज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से उसकी जो कंडीशन थी काफी अच्छी थी। दे कैन नॉट अटेंड द एक्सपेंसिव रेसिडेंशियल एंड प्राइवेट स्कूल्स दैट अबाउंड हियर। तो क्या बोल रहे हैं कि इनके पेरेंट्स जो थे, क्यों बोल रहे हैं कि उससे बेटर कंडीशन में है, बिकॉज कि ये जो बच्चा है रणबीर, ये एटलीस्ट वो स्कूल में तो जा पा रहा है ना, बट उसके जो पेरेंट्स थे ऐसे एक्सपेंसिव रेसिडेंशियल या प्राइवेट स्कूल में वो जा ही नहीं सकता था, है ना? बट मोस्ट गो टू गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ये ज्यादातर बच्चे कहाँ पे जाते थे, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, बिकॉज नेचुरली उनकी जो फीस है वो कम होते हैं, उनको वहां से ड्रेस भी मिलता है, बुक्स भी मिलते हैं, सो दे डोंट हैव टू एक्सपेंड लॉट ऑफ मनी, बिकॉज सिंस दे आर पुअर ना, दैट्स व्हाई दे गो फॉर द गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, सो विथ ओनली बेसिक फैसिलिटीज, वहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होते, जैसे प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे, आप स्मार्ट बोर्ड्स रहते हैं, आपको बस अवेल किया जाता है ना, आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलते हैं, आपको अच्छे अच्छे ड्रेस मिलते हैं, शूज मिलते हैं, महंगे महंगे बैग मिलते हैं, टिफिन बॉक्स मिलते हैं, मीन सो मेनी थिंग्स, कलरफुल बास्केट्स मिलते हैं, आपको कलर्स मिलते हैं, है ना? तो ये बच्चे दे आर नॉट सो what we say that they are not fortunate to get all these things, इतने वो किस्मत वाले नहीं होते कि ये सारी चीजें उनको मिले। ठीक है, सो देखते हैं, लेट्स सो यहाँ पे था, नॉट मेनी ऑफ देयर पेरेंट्स मैनेज टू गो टू स्कूल, दे स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग इन द फील्ड और डिलीवरिंग मिल्क इन हिल स्टेशन। तो क्या बोल रहे, दे वर नॉट सो फॉर्चुनेट, वो इतनी किस्मत वाले नहीं थे कि उनको स्कूल जाने के लिए मिले, या उनके पेरेंट उनको मैनेज करे कि स्कूल में भेजे। तो दे हाउ दे यूज टू स्पेंड देयर डे, दे यूज टू स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग, उनके जो ज्यादातर पूरे टाइम ही कहाँ पे जाते थे, फील्ड पे काम करने में, यानी जो खेत खलिहान है वहां पे काम करने में जाते थे, और डिलीवरिंग मिल्क, या फिर दूर दूर तक जिसको भी दूध की जरूरत होती है, जो दूध देने जाते हैं, वैसा वो काम करते थे, छोटे मोटे पेरेंट को हेल्प करते थे, एंड दे यूज टू अर्न मनी। द लकी वंस गॉट इनटू द आर्मी, और इनमें से ही जो है कुछ कुछ जो जो अच्छे फॉर्चुनेट थे, जो फॉर्चुनेट थे मीन्स लकी थे, उनको आर्मी में चांसेस मिला, मतलब टू सर्व, अच्छी नौकरी मिली आर्मी में, मतलब उनको अच्छी नौकरी मिली, सो दैट दे कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। परहैप्स रणवीर विल डू समथिंग डिफरेंट व्हेन ही ग्रोज अप। अब ये रस्किन बॉन्ड का एक थिंकिंग है दैट रणवीर जरूर कुछ करेगा व्हेन ही ग्रोज अप, बहुत अच्छा कुछ करेगा एज कंपेयर टू हिज पेरेंट्स, सो दैट कि उसकी लिविंग लाइवलीहुड काफी अच्छी हो जाए, अच्छी अर्निंग हो। ही हैज येट टू सी अ ट्रेन, बट ही सीज प्लेन फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। तो क्या था, बिकॉज ही लिव्स इन दिस स्मॉल विलेज एंड इट वाज अ सो डिफिकल्ट एरिया दैट ट्रेन वहां पे जो है बेसिकली इट इज नॉट अवेलेबल, तो उसने कभी ट्रेन वगैरह नहीं देखा है। कैन यू इमेजिन, ही इज ऑफ 10 years एंड ही स्टिल ही डिड नॉट सी एनी ट्रेन, तो उसने कोई ट्रेन वगैरह नहीं देखा, बट उसने प्लेन वगैरह को उड़ते हुए काफी बार देखा है। तो अभी
प्लेन उसने देखा है तो उसके मन में बहुत सारा रिलेटेड टू प्लेन उसके मन में क्वेश्चन आता है. सो लेट्स सी हाउ फार कैन अ प्लेन गो, ही आस्क्ड. तो वो अक्सर रस्किन बॉन्ड को आके पूछते थे ये प्लेन कितनी दूर जाती होगी. ऑल ओवर द वर्ल्ड आई टेल हिम. तो रस्किन बॉन्ड क्या आंसर करते थे, हाँ पता है ये पूरी दुनिया में जा सकता है ये प्लेन. थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन अ डे. थाउजेंड ऑफ माइल मतलब काफी दूर तक, यानी आप जितना सोच नहीं सकते इतनी दूर तक वो प्लेन ट्रैवल करता है. यू कैन गो ऑलमोस्ट एनीवेयर, और तुम जहां भी चाहो वहां तुम जा सकते हो. तो ऐसे क्वेश्चन करने के कारण ही वॉज सो क्यूरियस अबाउट नोइंग एवरीथिंग अराउंड हिम. तो ऐसे क्वेश्चन करने के कारण रस्किन बॉन्ड को लगता था कि ही विल डेफिनेटली डू समथिंग डिफरेंट. सो लेट्स सी आई विल गो अराउंड द वर्ल्ड वन डे ही वोज. तो वो प्रॉमिस करता है, यानी वो बोलता है कि मैं जब बड़े होऊंगा, मैं देखना मैं जब बड़े होऊंगा मैं ये पूरी दुनिया घूमूंगा, हर जगह मैं देखूंगा. आई विल बाई अ प्लेन एंड गो एवरीवेयर. वो क्या बोलता है, मैं जरूर एक बड़ी सी प्लेन खरीदूंगा और मैं उस प्लेन में हर जगह ट्रैवल करूंगा. एंड मे बी ही विल. रस्किन बॉन्ड क्या बोल रहे हैं कि वो इतना डिटरमाइंड था, इतना छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा, इफ ही कैन ओवरकम सच अ डिफिकल्ट लाइफ ही कैन डू एनीथिंग. एंड इन ऑल वेदर ही यूज्ड टू मैनेज टू गो टू स्कूल. अगर वो हर एक कैसे भी वेदर में वो मैनेज कर सकता था स्कूल जाने के लिए, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि वो शायद ये अपने लाइफ में कर ले. क्या कर ले, उसने बोला था ना कि मैं प्लेन खरीदूंगा और सारी जगह जाऊंगा, है ना. तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड बोलना चाह रहे हैं कि ही वॉज सो डिटरमाइंड दैट यस इवन ही कैन डू दैट ऑल्सो. सो ही हैज अ डिटरमाइंड चिन एंड अ डिफरेंट लुक इन हिज आईज. तो क्या बोल रहे कि वो इतना डिटरमाइंड था एंड अ डिफरेंट लुक इन हिज आईज मीन्स उसके उसके आंखें बोलती थी. ही वाज सो एग्रेसिव. एग्रेसिव यानी बहुत ही लड़ाकू नहीं. मीन्स यहाँ एग्रेसिव का मतलब होता है कि वो बहुत ही यानी आंख से ही पता चलता था कि वो कितना करेजियस है. ही इज ऑलवेज विलिंग टू डू एनीथिंग, है ना. वो इतना डिटरमाइंड है कि वो डेफिनेटली वो करेगा, दृढ़ निश्चय है, वो जरूर करेगा. So these lines in my journal were put down for my own inspiration or encouragement, but they will do for any determined young person. तो क्या बोल रहे कि मैंने जानबूझ के ये सारे लाइन मैंने डाला बिकॉज इवन इफ आई रीड माई ओन राइटिंग. क्या बोल रहे जब मैं लिखूं, यानी जब मैं पढ़ूं अपने ही राइटिंग को, पीस ऑफ वर्क को, या कोई मेरे रीडर को पढ़े तो उसको भी एक एनकरेजमेंट हो अंदर से, एक उसको भी फील करे कि हाँ मुझे अगर ये बच्चा कर सकता है तो इवन आई कैन ऑल्सो डू दैट. तो एक तरह का एक इंस्पिरेशन मिले. तो क्या बोल रहे हैं सिर्फ ये रीडर के लिए नहीं, मेरे लिए भी वो एक तरह का इंस्पिरेशन है. तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये लाइंस डाले हैं जो छोटा सा बच्चा रणबीर बोला करता था. सो वी गेट आउट ऑफ लाइफ व्हाट वी ब्रिंग टू इट. तो क्या बोल रहे हैं हमें अपने लाइफ से वो सारी चीजें मिल सकती हैं अगर हम मन से चाहे तो, अगर हम उस चीज को लाने की कोशिश करें तो. सिर्फ सोच लेने से, सपना देख लेने से नहीं होता है. अगर मैं बैठी हूँ और मैं सोची हूँ कि काश मैं अपने क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, काश मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन उसके लिए मैं कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ, हमेशा वो बैठ के मैं रील्स देख रही हूँ या टीवी देख रही हूँ या फ्रेंड्स के साथ ही खेल रही हूँ, बुक्स को कभी मैं हाथ नहीं लगाती, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, है ना. या मैं स्कूल में एब्सेंट रहती हूँ, मैं स्कूल में नहीं जा रही हूँ. तो ऐसे टाइप अगर करेंगे तो सिर्फ सपना देखने से नहीं होता. तो सपने के साथ साथ आपको उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं. तो इस बच्चे को, रणबीर को देख के रस्किन बॉन्ड को लगता था दैट ही विल डेफिनेटली डू दैट. सो वही बोल रहे कि अगर आप अपने मन में सोच लिया अपने लाइफ से कुछ करना है, आई हैव टू डू दैट, तो वो जरूर हो सकता है. तो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा चाहते हैं. सो देयर इज नॉट अ ड्रीम विच मे नॉट कम ट्रू इफ वी हैव द एनर्जी विच डिटरमाइंस आवर ओन फेथ. कई लोग बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बैड लक हूँ, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं. बट देयर इज नथिंग अबाउट बैड लक या किस्मत कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन आवर ओन विल. हम कितना एफर्ट करते हैं, हम कितने डिटरमाइंड है अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग. अगर मैं आईएएस बनना चाहती हूँ या फिर मैं कुछ और बेटर इससे ऑप्शन है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो कितना मैं डिटरमाइंड हूँ उस चीज को करने के लिए. तो वो चीज डिटरमाइन करती है, वो चीज तय करती है कि क्या मैं आगे चल के ऐसा बनूंगी, या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो क्या मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगी. डिपेंड करता है कि आप आज कैसे हैं, आप लाइफ को लेके कितने सीरियस हैं. We can always get what we want if we will it intensely enough. It may come when we no longer have any use of it, but if we have been willing to it long enough, it will come. Means यहाँ पे देखो आप समझो, वो जरूर आएगा. We can always get what we want. हमको जो चाहिए वो हमको जरूर से मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है. क्या कंडीशन है? इफ वी विल इट इंटेंसली. अगर हम मन से दृढ़ निश्चय करें कि हाँ मुझे करना ही है, एनफ मतलब जितना हमें सोच रहे. अगर मैं सोच रही हूँ कि आई हैव टू स्कोर फुल मार्क्स इन द क्लास, अगर मैं इस पूरी तरह से मैं अगर उसके लिए डूब गई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ मन लगा के, तो डेफिनेटली इट विल हैपन. इट मे कम when we no longer have any use of it. मीन्स अगर सिर्फ हम मन में ही सोच रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा?
इट हैव नो यूज ऑफ इट, कोई काम का ही नहीं होगा, सिर्फ मैं मन में सोच ही रही हूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि मैं सोचने में पूरा टाइम लगा रही हूँ लेकिन उसके लिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं, बट इफ वी हैव विलिंग, अगर मेरे मन में इच्छा है, इट लॉन्ग एनफ इट विल कम। तो अगर अगर मेरे मन में इच्छा है, और ऐसा नहीं आज मुझे मन किया हाँ मैं आज बहुत अच्छा मार्क्स लेके आऊं, और कल मुझे लगा जाने दो कौन इतना पढ़े, है मैं जितना लेके आ रही हूँ उतना ही ठीक है, उतने में सेटिस्फाई हूँ, तो क्या लगता है आप आगे बढ़ पाएंगे? नो। तो आपको आपने जो मन में सोचा है इट शुड बी constant in your life and you should be willing to do that to achieve it, ठीक है? So up to a few years ago very few girls in the hills or in the village of India went to school। तो क्या बोल रहे हैं कि आज whatever the scenario you are seeing today, many years before it was totally different। आजकल जो है गर्ल्स बॉयज इक्वली वो स्कूल जाती है, बट बहुत साल पहले की बात है जब गर्ल्स दे वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, या फिर धीरे धीरे जब ट्रेंड चेंज हुआ, जब लोग थोड़े से जागरूक हुए, अवेयर हुए दैट गर्ल्स शुड ऑल्सो गेट द इक्वल चांस टू गो टू स्कूल, तो धीरे धीरे लड़कियां भी जाने लग गई। तो लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, गर्ल्स जो है सिर्फ बॉयज को ही जाने का अधिकार था स्कूल में, गर्ल्स को बिल्कुल नहीं था। दे हेल्प्ड इन द होम अंटिल दे वेर ओल्ड एनफ टू बी मैरिड। और उनका काम क्या होता था गर्ल्स का, घर में रहती थी, फिर माँ का हेल्प करती थी, पापा की हेल्प करती थी, जो भी घर के काम है सब गर्ल्स करती थी, और जब थोड़ी बड़ी होती थी फिर उनकी शादी हो जाती थी, विच वॉजेंट वेरी ओल्ड। तो क्या बोल रहे हैं, जो कि बड़े भी नहीं हुए, छोटी छोटी बच्चों की, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 10 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। बट देयर आर नाउ जस्ट एज मेनी गर्ल्स एज देर आर बॉयज गोइंग टू स्कूल। लेकिन आज सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, आज आप देख सकते हैं इक्वली जितने बॉयज स्कूल में जा रहे हैं गर्ल्स भी जा रही हैं। बिंद्रा is something of extrovert, a confident 14-year-old girl who chatters away as she hurries down the road with her companion। तो she is an extrovert girl। तो extrovert का मतलब होता है कि बिंद्रा कैसी लड़की है, वो extrovert है, मीन्स वो बाहर जाना ज्यादा पसंद करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना अच्छा लगता है, अपने फैमिली से ज्यादा जो जिनको बाहर वाले के साथ यानी अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, these types of people are termed to be extrovert। और introvert का होता है exactly इसका opposite, यानी इंट्रोवर्ट जो होते हैं जिनको घर में ज्यादा अच्छा लगता है, फैमिली मेंबर्स के साथ रहना अच्छा लगता है, उनको बाहर फ्रेंड्स ज्यादा नहीं होते हैं, बट एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं उनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़े होते हैं। तो बिंद्रा भी कैसी थी, शी इज एन एक्सट्रोवर्ट गर्ल एंड शी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट थी। शी इज 14 years old एंड हु चैटर्स अवे, बहुत ही बात करती रहती थी, शी इज लाइक अ चैटर बॉक्स। तो हु चैटर्स अवे हमेशा बात करती थी एज शी हरीज डाउन द रोड विथ हर कंपेनियंस, कंपेनियंस मीन फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ जब जाती थी शी इज ऑलवेज बिजी इन टॉकिंग। So her father is a forest guard and knows me quite well। उसके पापा क्या है, उसके पापा फॉरेस्ट गार्ड है और जो रस्किन बॉन्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ देखो फोटो में आप देख सकते हैं रस्किन बॉन्ड, है ना, रस्किन बॉन्ड देख रहे हैं आपने विंडो से, अक्सर वो उनको उनका ये फेवरेट प्लेस था, ये बैठ के बच्चों को नोटिस करते रहते थे कि वो स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता था। सो बिंद्रा के जो फादर है वो रस्किन बॉन्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। आई मीट हिम ऑन माई वॉक थ्रू द देवदार वुड्स बिहाइंड लैंडोर। तो क्या बोल रहे हैं कि अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती थी जब वो वॉक पे निकलते थे, कहाँ पे, देवदार वुड, यानी कि जो एक बड़ी यानी फॉरेस्ट है, देवदार का फॉरेस्ट है, वहां से वो कहाँ पे है, बिहाइंड लैंडोर। तो ये प्लेस के पास में ही है देवदार का जो फॉरेस्ट है, वहां पे वो अक्सर वॉकिंग करने जाते हैं, तो वहां बिंद्रा के पिताजी से मुलाकात होती है। आई हैड ग्रोन यूज्ड टू सीइंग बिंद्रा ऑलमोस्ट एवरी डे। तो क्या बोल रहे हैं, मैं अक्सर एंड आई हैड ग्रोन यूज्ड टू सीइंग बिंद्रा, मैंने अक्सर हमेशा प्राय रोज ही मैंने बिंद्रा को देखा है, कैसे, ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज देखा है। और कैसे देखा है, उसको थोड़ा 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 धीरे धीरे आई हैव ग्रोन करते हुए, यानी छोटे से उसको बड़े होते हुए उसने देखा है, ठीक है। व्हेन शी डिड नॉट पुट इन एन अपीयरेंस फॉर अ वीक आई आस्क्ड हर ब्रदर इफ एनीथिंग वाज रॉन्ग। तो ये बिंद्रा कौन थी, रणबीर की बहन। तो अगर कभी भी बिंद्रा नहीं दिखती थी तो वो अक्सर रणबीर को पूछते थे, अरे क्या हो गया, आज तुम्हारी बहन नहीं दिख रही है, कुछ कुछ हुआ है क्या उसको। तो रणबीर क्या जवाब देता है, देखो हाउ ही रिप्लाइज, ओह नथिंग, ही सेज, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, शी इज हेल्पिंग माय मदर कट ग्रास। तो क्या बोल रहे हैं, वो तो आज नहीं आई है बिकॉज वो घर पे मम्मी की हेल्प कर रही है, घास वगैरह काट रही है। सून द मॉनसून विल एंड एंड द ग्रास विल ड्राई अप। तो क्या बोल रहे हैं, अरे मॉनसून खत्म हो जाएगा और घास जो है वो पूरे सूख जाएंगे, सो वी कट इट नाउ एंड स्टोर इट फॉर द काउज इन विंटर। इसलिए हम काट काट के इसको रखते हैं जिससे कि बाद में काउ को खिला सके, गाय को खिला सके। सो एंड व्हाई आरंट यू कटिंग ग्रास टू। तो अभी जो रस्किन बॉन्ड क्या बोलते हैं, अच्छा तुम्हारी दीदी काट रही है, तुम क्यों नहीं काट रहे हो, तुम्हें भी तो अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए। तो देखो अब रणबीर क्या आंसर कर रहा है, ओह आई हैव अ क्रिकेट मैच टुडे, ही सेज एंड हरीज अवे टू जॉइन हिज टीममेट्स। तो क्या बोले, अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आज क्रिकेट खेलने जाऊंगा ना,
और ऐसा बोलता है, बोल के आज मेरी मैच है क्रिकेट की, ऐसा बोल के वो जल्दी से भाग जाता है। अनलाइक हिज सिस्टर ही पुट्स प्लेजर बिफोर वर्क। तो उसने क्या बोल रहे हैं, उसकी बहन के कंपेयर में, उसकी बहन के देखो, शी यूज टू गो टू स्कूल, शी यूज टू हेल्प हर मदर, और उसके अलावा भी इफ देर इज समथिंग मोर वर्क शी हैव टू बी एब्सेंट इन द स्कूल, है ना। अगर वो काम करती है, इसके अलावा भी अगर ज्यादा काम होता है तो उसे एब्सेंट होना पड़ता है, और एब्सेंट होकर उसे अपने मम्मी पापा का हेल्प करना पड़ता है। बट यहाँ पे देखो वो स्कूल जाता है और बाकी टाइम क्या करता है, वो एंजॉय कर रहा है। तो जस्ट सी हाउ देयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है लड़का और लड़की में भेद करना। लड़का है तो वो घर का काम नहीं करेगा, वो खेलेगा, उसको सारी जितनी अच्छी चीजें ही विल गेट। बट गर्ल्स को क्या है, गर्ल्स इज, आज भी आप देखेंगे कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे गर्ल्स को जो है डोमिनेट किया जाता है, उनको जो चाहिए उनको नहीं मिलता है, दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स विल। वो जो भी करती हैं उनके मम्मी पापा को अगर पसंद है तो ही करेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू डू द वर्क विच दे लाइक। उन्हें जो पसंद है वो करने का उनको अधिकार नहीं है। सो क्रिकेट, अब देखो क्रिकेट के बारे में बोल रहे हैं डिटेल में रस्किन बॉन्ड। क्रिकेट वंस द गेम ऑफ एलिट। एलिट का मतलब जो बड़े बड़े घराने के लोग, जैसे पहले देखो क्रिकेट कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड में क्या थे, अंग्रेज लोग थे, है ना। इंग्लिश पीपल वे देयर, दे वर हैविंग मनी, एंड उनके जो बहुत लग्जरियस लाइफ होता था, ये बहुत बड़े लोगों का गेम होता था क्रिकेट। तो एलिट मीन्स जो बड़े बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके उनका गेम होता था। हैज बिकम द गेम ऑफ द मासेस। और आज देखो ये क्रिकेट जो है वो बिकम द मासेस, मतलब भीड़ का गेम हो गया। आज हर दूसरे इंसान को पूछेंगे तो उनका फेवरेट गेम क्या है, क्रिकेट। हर दूसरा इंसान जो है वो टीवी में आईपीएल देखना पसंद करता है। तो वंस जो एक एलिट का गेम था, और हर गली कूचे में आप क्या देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में बैट है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, एक बार जो क्रिकेट जो इतना एलिट का गेम था, आज वो कॉमन लोगों का गेम बन चुका है। On any holiday in any part of this vast country, group of boys can be seen working their way to the nearest field or open patch of land with bat, ball and any other cricketing gear that they can cobble together. तो क्या बोल रहे हैं, कॉबल टुगेदर यानी बांध लेना। तो क्या बोल रहे हैं, आप देखेंगे कभी भी आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, कहीं पे भी फ्री टाइम है, स्कूल की छुट्टी है, कॉलेज की छुट्टी है, तो यू कुड सी कि ये जो बॉयज लोग हैं वो अपना टीम बना के अपना समय कहाँ पे स्पेंड करते हैं। दे यूज टू गो टू cricket ground which is near to their house, and they used to wear all the cricket gear यानी जो पैड हो गया है, खुद को प्रोटेक्शन ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गए, ये सारे पहन के वो खेल रहे हैं क्रिकेट। वॉचिंग सम ऑफ देम प्ले आई एम अमेज्ड एट द क्वालिटी ऑफ टैलेंट एट द फाइनेसिस विथ विच दे बैट और बॉल। तो क्या बोल रहे हैं, वॉचिंग देम, उनको मैं घंटों घंटों, आप देख सकते हैं यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जो है वो कैसे बच्चों को देख रहे हैं ना। और देखिए आप देख रहे हैं बच्चों के शरीर में कपड़े ढंग के नहीं है, बट स्टिल दे आर प्लेइंग, है ना। उनके पास स्टंप खरीदने का पैसा नहीं है, बट स्टिल दे मैनेज एंड दे आर प्लेइंग विद द बैट एंड बॉल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप इन लोग कोई फॉर्मल कोचिंग वगैरह नहीं लिया, बट स्टिल वो देखिए कितने फाइन क्वालिटी के साथ वो जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी कोचिंग में से आए हैं, क्रिकेट कोचिंग में से आए हैं। तो सम ऑफ द लोकल टीम्स आर एज गुड इफ नॉट बेटर देन एनी फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल्स। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे से खेल रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि कोई लोकल टीम वगैरह जो होता है, जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल टीम, उनसे भी ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिन्हें प्रॉपर कोचिंग मिलता है, उनसे उनके बराबरी में ये इतना अच्छा खेल रहे हैं, वेयर देयर आर बेटर फैसिलिटीज। और ये बच्चे, प्राइवेट के बच्चे क्यों इतना अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग कोचेस होते हैं, गेम्स के टीचर्स होते हैं जो इनको सिखाते हैं, रूल सिखाते हैं, बैटिंग के वे सिखाते हैं, है ना। बट ये बच्चों को तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, है ना, बट स्टिल दे मैनेज टू प्ले, और ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। But the boys from these poor or the lower middle class families will never get the exposure that is necessary to bring them to the attention of those who select state or national teams. तो इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी they may not get the chance to go to national or state. क्यों, क्योंकि इनको प्रॉपर एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। प्रॉपर एक्सपोजर यानी कि इनको खेलने का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। वो कहाँ खेल रहे हैं, अपने गली कुचे में खेल रहे हैं, स्कूल में उनको चांसेस नहीं मिल रहा है। उनको कौन चांस देगा स्टेट लेवल में खेलने का या नेशनल लेवल में खेलने का, है ना। तो इनको इतने अच्छे टैलेंट होने के बावजूद भी, सिंस दे बिलोंग टू पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, देयरफॉर दे आर नॉट गेटिंग एनी एक्सपोजर। इनको ऐसा ग्रूम करने का ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। दे विल नेवर गेट नियर एनफ टू द मेन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। और माइट भी देखो, एक तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है अगर उनके पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर क्लासेस में जाएगा, कोचिंग लगाएगा, कोचेस उनको सिखाएंगे तो बहुत अच्छा करेगा, और नेचुरल उनको प्लेटफॉर्म में मिलेगा, वो
स्टेट लेवल या रीजनल लेवल या नेशनल लेवल में खेल सकते हैं। बट ये बच्चे को क्या है कि अगर कोई इन्फ्लुएंस करे, यानी इन द सेंस कोई बड़ा इंसान आए जिनकी बहुत दूर तक पहचान हो, जिनका बहुत पावर हो, तो ऐसा अगर कोई इंसान मिले तो शायद उनको मिले प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो खेल सकते हैं। बट वो क्या बोल रहे हैं रस्किन बॉन्ड, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आए उनके लाइफ में जो इनको इन्फ्लुएंस करे, उनको पावरफुल हो, जिनको इनको प्लेटफॉर्म दिला सके। दे मस्ट कंटिन्यू टू प्ले फॉर द लव ऑफ द गेम। तो शायद ये अपने फ्यूचर में भी ऐसा ही खेलेंगे। क्यों खेल रहे हैं? कहीं सिलेक्शन होने के लिए नहीं, बिकॉज दे लव द गेम, क्योंकि उन्हें ये गेम पसंद है इसलिए वो खेल रहे हैं। टू वॉच देयर मोर फॉर्चुनेट हीरोज एक्सप्लॉइट ऑन द टेलीविजन। और वो क्यों खेलते हैं? क्योंकि टेलीविजन में इनको उनके जो फेवरेट हीरोज है वो गेम खेलते हैं। आपको देखो विराट कोहली आप देखते होंगे, इसको देख के आप भी इंस्पायर होते हैं, मुझे भी ऐसे ही खेलना है, ऐसा करना है, ऐसा बैटिंग करना है। तो ऐसे ये बच्चे भी देखते हैं और इसको देख के इंस्पायर होके ये बच्चे भी अपने हीरो के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। As winter approaches and the days grow shorter, देखो क्योंकि ये हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे नेचुरली जो फ्लैट लैंड में रहते हैं उसके कंपेयर में यहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है। तो विंटर में तो और ज्यादा ठंड पड़ती है और नेचुरली विंटर में जो है जो डे है वो शॉर्टर हो जाता है एज कम्पेयर टू समर। So those children who live far away must quicken their pace in order to get home before dark। और तब क्या होता है जब वो वापस आते हैं, since they have to travel long, तो इनको क्या है पैदल चल के चलना पड़ता है काफी दूर तक। तो तो क्या बोल रहे हैं कि इनको बहुत जल्दी करना पड़ता है जब ठंड का मौसम होता है, क्योंकि दिन छोटी हो जाती है, तो अंधेरा होने के पहले इनको घर तक पहुंचना जरूरी होता है। रणबीर एंड हिज फ्रेंड्स फाइंड दैट डार्कनेस हैज फॉलन बिफोर दे आर हाफ वे होम। तो अक्सर क्या होता है कि रणबीर और उसके फ्रेंड्स जब वो वापस जाते हैं कि घर पहुंचने के पहले ही रात हो जाती है, बिकॉज काफी दूर का उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो रात हो जाती है। What is the time, अंकल? वो चलते चलते क्या पूछता है, अंकल कितना बज रहे हैं? He asked as he trudges up the steep road past Eve cottage। तो क्या बोल रहे हैं कि what is the time, क्या अंकल क्या टाइम हुआ है? एंड वो क्या बोल रहे हैं, ये ट्रजेस यानी जब वो हम पहाड़ में चलते हैं ना बेटा, हम ऐसे झुक झुक के बड़ी तकलीफ से ऐसा स्टीप, क्योंकि क्यों ऐसा चलते हैं, झुक झुक के क्यों चलते हैं? क्योंकि बहुत ही स्टीप है, जो माउंटेन है काफी स्टीप है, काफी स्टीप है, तो उनको चढ़ने में तकलीफ होती है, तो ऐसा झुक के घसीटते हुए ऊपर चलते हैं। One gets used to being called uncle by almost every boy or girl one meets। क्या बोल रहे हैं रस्किन बॉन्ड, अक्सर मुझे जो भी बच्चा मुझे दिखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मुझे अंकल ही बुलाते हैं। आई वंडर हाउ द कस्टम बिगेन। वो क्या बोलते हैं, पता नहीं ये अंकल वाला कस्टम शुरू कैसे हुआ। Perhaps it has its origin in the folk tales about the tiger who wouldn't pounce on you if you call him uncle। तो क्या बोले, शायद मुझे लगता है फोकटेल से हुआ होगा। फोकटेल यानी कि जो पुराने जमाने की जो कहानियां वगैरह जो प्रचलित कहानियां होती थी ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो कहानी है उसमें क्या बोल रहे हैं कि शायद इसमें जो शेर होता है उसको अंकल बोलने से शायद वो पाउंस ना करे, यानी मेरे ऊपर जंप ना करे, क्योंकि उसको क्या लगेगा, टाइगर डोंट ईट देयर रिलेटिव, क्योंकि टाइगर को लगता होगा कि अरे अंकल बोला ये तो मेरा रिलेटिव हो गया, मेरा पहचान वाला हो गया, मेरा रिश्तेदार हो गया, तो अरे मैं इसको कैसे खा सकता हूँ। और दे डू और डू दे, तो क्या बोल रहे हैं, इसीलिए शायद इन लोग अंकल अंकल बोलते होंगे। द प्लॉय में नॉट वर्क इफ द टाइगर हैपेंस टू बी अ टाइग्रेस। तो क्या बोल रहे हैं, यही सेम चीज, ये जो ट्रिक है, प्लॉय का मतलब ट्रिक है, यही सेम ट्रिक टाइग्रेस के साथ नहीं होने वाला है। वुड यू कॉल हर आंटी एज शी और योर टीचर डिसेंड्स ऑन यू। तो क्या बोल रहे हैं, अगर तुमने गलती से टाइग्रेस को आंटी बोल दिया या फिर तुम्हारे टीचर को तुमने आंटी बोल दिया, तो क्या हो गया, वो तुम्हारे ऊपर ही टूट पड़ेंगे। सो आई थिंक यू विल एग्री विथ मी। आप देखो ये बच्चों को देखो कैसे वो स्कूल में दिख रहे हैं बच्चे, कैसे इन लोग सर के ऊपर जो अपने बैग है वो लेके जा रहे हैं, अपने ये रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। तो देखो इससे रिलेटेड भी एक स्टोरी है, देखते हैं। इट्स डार्क एट 6 एंड बाय देन रणवीर लाइक्स टू बी आउट ऑफ द देवदार फॉरेस्ट। तो क्या बोल रहे हैं, अब ये 6 बज चुका था घर पहुंचते पहुंचते और अंधेरा हो चुका था। अब इनके मन में डर है, इनको क्या लग रहा है, जल्दी से हमें ये जंगल को, देवदार का जो जंगल है उसके हमें क्रॉस करके आगे बढ़ना है। एंड ऑन टू द ओपन रोड, और कहाँ पहुंचना है, ओपन रोड की तरफ, जहां रोड वगैरह है वहां तक हमें पहुंचना है, टू द विलेज। और वो रोड कहाँ पे जाएगी, विलेज तक, तो मुझे हम लोग को जल्दी से वहां पहुंचना है। द मून एंड द स्टार्स एंड द विलेज लाइट्स आर सफिशिएंट बट नॉट इन द फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं, जो सनलाइट बोल रही हूँ, जो मून लाइट है और जो स्टार की तो लाइट होते नहीं है, बस बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत, देखो आप बाहर निकलेंगे ना पूरी टोटली अंधेरा नहीं रहता है, थोड़ी बहुत जो मून लाइट है वो आता ही है। तो क्या बोल रहे हैं, वो सफिशियंट है दिखने के लिए, लेकिन अगर फॉरेस्ट है तो ये सफिशियंट नहीं है। क्यों, वेयर इट इज डार्क इवन ड्यूरिंग द डे, क्योंकि बोल रहे हैं कि दिन के समय ये फॉरेस्ट इतने डेंस है कि इवन डे समय के में, दिन के समय में भी ये अंधेरा होता है, तो रात का तो छोड़ ही दो। एंड द साइलेंट
flitting of the bats and flying foxes and eerie hoot of the owl can be a little unsettling for the hardest of the children. तो क्या बोल रहे हैं? And the silent flitting of the bats, ये तो बैट जो फ्लिटरिंग करता है, फट 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 आवाज करता है अपने पंखों के, and flying foxes, फ्लाइंग फॉक्स भी आपने देखा होगा, आप अगर नहीं देखे हो तो आप नेट में देख लीजिएगा फ्लाइंग फॉक्स कैसा दिखता है, ठीक है, उसकी भी आवाज आती रहती है। तो ये आप जब जंगल के पास से जाएंगे तो ये अलग अलग तरह का आवाज आता है। एंड जो आउल का जो इरी एक अलग ऐसा आवाज करता है, तो ऐसी आवाज जो है वो आती रहती है। कैन भी उनके लिए क्या होता है अनसेटलिंग, यानी उनको थोड़ा सा घबराहट होती है मन में। और ये जो घबराहट है ये अलग अलग एनिमल्स की अजीब अजीब आवाज, तो ये हार्डेस्ट होता है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहां से क्रॉस करने के लिए। वंस रणबीर एंड द अदर बॉयज वे चेस्ड बाय अ बियर, एक बार की बात है रणबीर और उनके फ्रेंड को तो पीछा किया था किसने, भालू ने। चेज यानी पीछा करना, तो भालू उसका पीछा कर रहे थे। व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट इट आई सेड वेल नाउ वी नो यू कैन रन फास्टर देन अ बियर। बेयर, तो क्या बोल रहे कि जब ऐसे ही हुआ था, एक बेयर ने रणवीर का पीछा किया था, तो रणवीर ये घटना आके किसको बोले थे, रस्किन बॉन्ड को आके शेयर किए थे। पता है अंकल क्या हुआ था, मेरे पीछे भालू पड़ा था, मैं किसी तरीके से दौड़ते दौड़ते बचा। तो रस्किन बॉन्ड क्या मजाक करके क्या बोल रहे हैं, ओहो हो अब मुझे पता चला कि तुम लोग जो है बेयर से भी ज्यादा तेज दौड़ते हो, तभी तो अब तुम बच गए। यस बट यू हैव टू रन डाउन हिल व्हेन चेस्ड बाय अ बेयर, तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना आप कि जब भी आप बेयर आपके पीछे पड़े तो आपको क्या करना है, दौड़ के डाउन हिल में जाना पड़ता है। He spoke as one have long experience of escaping bear, तो क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों को बहुत आइडिया था बेयर से किस तरीके से एस्केप किया जाए, कैसे बचा जाए। क्यों, अब देखो क्यों बोल रहे डाउन हिल, रीजन दे रन फास्टर अप हिल, तो क्या बोल रहे गलती से भी ऊपर नहीं चढ़ना हिल के, क्योंकि जो बेयर होते हैं वो फटाफट ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनके लिए स्टीप जाना, नीचे डाउन हिल में जाना थोड़ा तकलीफ होता है। आई विल रिमेंबर दैट आई सेड, रस्किन क्या बोलता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं बिल्कुल याद रखूंगा। थैंक्स फॉर द एडवाइस, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी इसलिए थैंक यू। एंड आई डोंट सपोज कॉलिंग अ बेयर अंकल वुड हेल्प, वो फिर मजाक करके क्या बोल रहे हैं, हाँ अब मन में सोच रहे हैं हाँ बेयर को अंकल बोलने से थोड़ी ना बच सकते इन लोग। सो ये एक तरह का एक पंच दिया और कुछ नहीं है, एक मजाक कर रहे हैं। यूजुअली रणबीर हैज द कंपनी ऑफ अदर बॉयज एंड दे सिंग मोस्ट ऑफ द वे, और क्या बोले रणबीर अक्सर अकेले नहीं आता था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था। तो ये जब जाते थे और बीच में रात, मैंने बोला ना कि अभी ठंड का समय है, दिन छोटा है, रात जल्दी होती है, तो अक्सर ये क्या करते हैं रात आने के कारण दे सिंग मोस्ट ऑफ द वे, आधे से ज्यादा रास्ता जो है वो गाते गाते जाते थे। और कैसे, फॉर लाउड सिंगिंग, जोर जोर से गाते थे। अब आपको हंसी आ रही होगी कि यार ये गाते गाते क्यों जा रहे हैं, देखो रीजन यहाँ बता रहे, बाय स्मॉल बॉयज will silence owls and frighten away the forest demons। अब देखो जब जोर जोर से आवाज करके जाएंगे ना, तो जो एनिमल्स है जंगल में उनको भी लगता है, इवन दे ऑल्सो फेयर फ्रॉम द ह्यूमन। आपको ऐसा लगता होगा कि वो ह्यूमन से नहीं डरते, बट दे ऑल्सो फेयर, है ना, जिस तरीके से हमें जानवर से डर लगता है, जानवर को भी हमसे डर लगता है। तो लेकिन वो अटैक क्यों करते होंगे, आपके मन में लग रहा है वो अटैक इसीलिए करते हैं बिकॉज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उनको क्या लगता है कि अरे ये मेरे पे अटैक करे, उससे बेटर कि मैं इसके ऊपर अटैक करके खुद को बचा लूं। तो अगर पहले से अगर आप उनको अलर्ट करते कि हाँ यहाँ से ह्यूमन जा रहे हैं, तो वो कभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये बच्चे जो है दे नो द वे हाउ टू गो, हाउ टू एस्केप फ्रॉम द बेयर, हाउ टू सेफ गार्ड देमसेल्फ, किस तरीके से कुछ को बचाए फ्रॉम द फॉरेस्ट एनिमल्स। तो इसीलिए ये गाना गाते गाते जाते थे, सो दैट कि उनको अलर्ट कर दे एनिमल्स को कि भाई यहाँ से ह्यूमन क्रॉस कर रहे हैं। वन ऑफ देम प्ले अ फ्लूट, कोई उसमें से कोई बच्चा जो है वो फ्लूट बजाता है, बांसुरी बजाती है। एंड द फ्लूट म्यूजिक इन द माउंटेन इज ऑलवेज एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग मतलब जो मन को बहुत अच्छा लगे। तो आप देखेंगे, देखिए प्रीवियस पिक्चर में था, ये देख रहे हैं आप बच्चे जा रहे हैं, है ना, और देखो ये फ्लूट बजा रहा है ना। तो ये बोल रहे हैं कि बच्चे गाना गाते हैं और कुछ बच्चे तो फ्लूट भी बजाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ये हमेशा एन्चेंटिंग होता है, यानी मन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पहाड़ों में क्या होता है कि वो दूर दूर तक जो है फ्लूट की आवाज गूंजती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। Not only in the hills but all over India, children are constantly making their way to and from the school in conditions that range from dust storm in the Rajasthan desert to blizzard in the Ladakh and Kashmir। तो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ यहीं की बात नहीं है, हिल्स में नहीं है, बट ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं पे भी देखेंगे, रिमोट एरिया में ज्यादातर देखेंगे बच्चे जो है कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्कूल में जाने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए और स्कूल से घर वापस आने के लिए। चाहे आप वो जो डस्ट भरी यानी धूल भरी आंधी राजस्थान की हो, या जो आप बोल सकते हैं लद्दाख का जो ब्लिजार्ड, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, चुभाने वाली ठंडी चलती है, स्नो की जो हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, वो लद्दाख की बोलो चाहे कश्मीर में बोलो, ये सब जो है बच्चे क्रॉस करके रोज स्कूल आना और जाना करते हैं। इन द लार्जर टाउन एंड सिटीज देयर आर स्कूल बसेस, बट इन रिमोट रूरल एरियाज गेटिंग टू स्कूल कैन पोज अ प्रॉब्लम। तो क्या बोले बड़े बड़े, क्योंकि बच्चों आप लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हो तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन गांव वगैरह में ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके लिए बसेस नहीं होते हैं। और कितनी बार तो मैंने अभी बताया रणवीर जाता है
पैदल जाता है, तो आप सोचो स्कूल कितनी दूर है, जिसमें उसको पहाड़ चढ़ के चलना पड़ता है, तो उनको बहुत सारी तकलीफों को सामना करके उनको स्कूल जाना पड़ता है। Most children are more than equal to any obstacle that may arise। तो क्या बोल रहे हैं कि अब देखो ये थोड़ा घुमावदार सेंटेंस है, तो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मोस्ट चिल्ड्रन आर मोर देन इक्वल टू एनी ऑब्स्टिकल, मीन्स कितनी भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, दे आर मोर देन, यानी वो खुद को ऐसे बना लिए बच्चे कि दे आर मोर देन द ऑब्स्टिकल, यानी वो कहना चाहते हैं कि ऑब्स्टिकल से भी ज्यादा हिम्मत इनके अंदर है। दैट में अराइज, इनकी जिंदगी में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इनसे ज्यादा वो पावरफुल है। लाइक दोज यंगस्टर इन गुंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, जैसे कि ये अभी स्टोरी कहाँ का था ये तो हिली एरिया का था, अभी हम पढ़ेंगे ओडिशा के गुंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के बारे में पढ़ेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ ब्रिज दे स्विम और वेड अक्रॉस द दाहिन रिवर एवरी डे इन ऑर्डर टू रीच देयर स्कूल। तो क्या बोल रहे हैं कि स्कूल जाने के लिए एक बड़ी सी नदी आती है उनके बीच में, स्कूल के बीच में, जहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है। दे हैव टू स्विम, वो स्विम करते हैं, और वेड देखो यहाँ पे दिया ही हुआ है, वॉक वॉक विथ एफर्ट थ्रू वाटर और मड, यानी पूरे कीचड़ से भरा हुआ रहता है, वहां से वो जाते हैं। तो दाही रिवर जो आती है वहां, उसको क्रॉस करके वो आगे की ओर बढ़ते हैं। आई हैव अ पिक्चर ऑफ देम इन माई स्क्रैप बुक, देखो वही पिक्चर जो है वो रस्किन बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, देख रहे हैं किस तरीके से वो बैग को अपने सर पे रख के बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो रिवर को क्रॉस करके स्कूल तक पहुंच रहे हैं। कैन यू सी दैट हाउ मच दे लव टू गो टू स्कूल, हाउ मच दे आर विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। सो ये उन्होंने बता दिया, होल्डिंग बुक्स और स्कैकल्स aloft in one hand, they do the breaststroke or dog pedal with the other or form a chain and help each other। तो क्या बोलते हैं, वो बुक्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं, और सैकल्स अलोफ्ट, यानी कि जो बैग के पीछे आप देखो जिससे आप लोग लटकाते हो ना बेटा, शोल्डर पे लटकाते हो, वही चीज जो है उसको सैकल बोल रहे हैं। तो वही चीज को वो अपने अलोफ्ट यानी कि सर के ऊपर रख के, वो एक हाथ में ऐसा सर के ऊपर रख के और दूसरे हाथ से ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब क्या होता है बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ अ स्विमिंग के एक तरह का एक स्टेप है, ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, तो वैसे स्ट्रोक लगा के वो जाते हैं, या फिर डॉग पेडलिंग करते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्विमिंग। तो ये करके वो पहुंचते हैं, या कभी कभी वो चेन यानी आपस में हाथ पकड़ते हैं और क्रॉस करते हैं, सो दैट कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो पानी में बहने जाए तो उसको हेल्प करते हुए भी वो निकलते हैं। Wherever you go in India, you will find children helping out with the family's source of livelihood, whether it be drying fish on the Malabar coast or gathering saffron buds in Kashmir or grazing कैमल और कैटल इन अ विलेज इन राजस्थान और गुजरात। तो क्या बोले, चाहे आप इंडिया के किसी कॉर्नर में भी चले जाइए, आप देखेंगे अक्सर रिमोट एरियाज में जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, साथ साथ में वो फैमिली में अपने मम्मी पापा के लाइवलीहुड में, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो पैसा कमाया जाता है उसको हम लाइवलीहुड बोलते हैं। कुछ किसी किसी के पेरेंट मछुआरे होते हैं, तो मछलियों को बेच के वो पैसा कमाते हैं जिससे उनका घर चल सके, तो उनका लाइवलीहुड क्या है, फिशिंग एंड सेलिंग इन द मार्केट। तो यही बोल रहे हैं कि अपने फैमिली के लाइवलीहुड में वो हेल्प करते हैं, पैसा कमाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो फिश को ड्राई करने के लिए हो, कहाँ पे, मालाबार कोस्ट में। ये कोस्ट मतलब बीच की एरिया की बात कर रहे हैं, मालाबार जो बीच है वहां पे इन मछुआरे जो है वो मछलियों को सुखाते हैं। या फिर सैफरन यानी केसर की बात कर रहे हैं, केसर के जो बर्ड्स हैं उसमें से निकाल के केसर को इकट्ठा करके उसको सुखा के फिर मार्केट में बेचते हैं, उसके लिए भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। या फिर कैमल्स या फिर कैटल्स, जो 4 पैर वाले एनिमल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, इन अ विलेज उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, यानी उनको घास चराने के लिए जाते हैं, चाहे वो आप राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें, यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। ओनली द मोर फॉर्चुनेट कैन अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, इंग्लिश मीडियम, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल, एंड दोज चिल्ड्रन रियली आर फॉर्चुनेट, for some of these institutions are excellent schools, as good and often better than their counterparts in British और USA। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज रस्किन बॉन्ड जी ने बोला, उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि कुछ ही बच्चे होते हैं, ओनली द मोर फॉर्चुनेट कैन एफर्ट, जैसे आप लोग जैसे इंग्लिश मीडियम में जाते हो, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप लोग कितने फॉर्चुनेट हो, फॉर्चुनेट यानी बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप लोग को इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने के लिए मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल जाने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट या पब्लिक स्कूल्स, ठीक है। तो ऐसे बच्चे रियली दे आर रियली फॉर्चुनेट, ये सच में ये लोग भाग्यशाली होते हैं। क्यों, और क्योंकि ये जो स्कूल होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। क्या बोल रहे हैं, एज गुड एंड ऑफन बेटर, कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, किससे किसके कंपेयर कर रहे हैं, देन देयर काउंटर पार्ट, मतलब किसके साथ कंपेयर करके, उनके कंपेयर में, कहाँ पे, ब्रिटिश और यूएसए,
ब्रिटिश या यूएसए में जो स्कूल है उनसे भी काफी हद तक ये स्कूल जो है उनसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं, वेदर इट्स इन अजमेर और बेंगलुरु। तो ये क्या बोल रहे हैं, चाहे आप अजमेर की स्कूल की बात कर लो, या बेंगलुरु की बात करो, या न्यू दिल्ली, या चंडीगढ़, कानपुर, कोलकाता, द बेस्ट स्कूल्स सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो ये बड़े बड़े सिटीज का नाम है, और ये बड़े बड़े सिटीज में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं जो बहुत कुछ फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देते हैं, और क्या बोल रहे हैं कि इन लोग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं, एक्चुअली के फीस भी बहुत होते हैं, सो दैट इसलिए क्या पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू दीज स्कूल्स। The great majority of our children will attend school run by the state or municipality. तो इंडिया में मैक्सिमम 50% से भी ज्यादा बच्चे होते हैं जो स्टेट या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो स्कूल चलाया जाता है, यानी सरकारी स्कूल में वो जाते हैं, क्योंकि यहाँ फीस नहीं के बराबर होती है, कभी कभी किसी किसी स्कूल में तो फीस लेते भी नहीं है, ऐसी स्कूल्स में वो जाते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज दे आर वेरी पुअर। दीज वैरी फ्रॉम गुड टू बैड टू अगली डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर रन एंड वेयर दे आर सिचुएटेड। तो क्या बोले, ये जो स्कूल होता है कभी कभी कुछ कुछ स्कूल अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं कि सारे बुरे ही होते हैं, कुछ कुछ अच्छे होते हैं, और कभी कभी ये बुरे भी होते हैं, और बुरे भी क्या बोल रहे हैं, टू अगली यानी बहुत ही ज्यादा बुरे। कहाँ पे होते हैं, डिपेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे, कौन चला रहा है, वहां का प्रिंसिपल कैसा है, वहां के टीचर्स कैसे, वहां के गवर्न करने वाले कैसे हैं, है ना, और कौन सी जगह पे, अगर बहुत ही रिमोट एरिया है यानी बहुत ही गांव देहात में है, इंटीरियर में है इंडिया के, तो वो उनकी बहुत ही कंडीशन बुरी है, क्योंकि वहां पे कोई उसको ठीक करने नहीं आ रहा है। आप देखेंगे रूफ, ऐसा लगता है कि रूफ जो है अभी गिर जाएगा, बारिश में पानी टपकता रहता है ना, तो उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब हो चुकी है। तो बच्चे जब वहां जा ही नहीं पा रहे, तो वहां की क्वालिटी क्या, कभी कभी क्या होता है कि क्लासेस बिल्डिंग तो है बट बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग इतनी बुरी है। सो अ क्लासरूम विदाउट विंडोज और विद अ रूफ दैट लेट्स इन मॉनसून रेन इज नॉट अनकॉमन। तो क्या बोल रहे हैं, अभी देखो जैसे मैंने अभी बताया ना, वही चीज बता रहे हैं। अब सोचो ऐसी जगह पे क्लासरूम कैसा होता है, विदाउट विंडो, कोई विंडो नहीं है, और विद अ रूफ, क्या बोल रहे हैं, इवन आप सोच लो कि रूफ भी नहीं है, ऊपर का छत भी नहीं है, दैट लेट्स इन मॉनसून, और छत नहीं है तो बरसात के समय बारिश हो रही है ना, पूरी बारिश क्लास में आ रही है, बारिश का पानी क्लास में आ रहा है, इज नॉट अनकॉमन, मतलब ये अनकॉमन नहीं है कि अरे ऐसा है क्या, छत ही नहीं है, इनके लिए कॉमन है। अरे छत नहीं है, अच्छा हाँ वो तो पता ही है भाई, छत नहीं है, हमारे स्कूल में भी नहीं है, ऐसा ये कॉमन है उनके लिए। इवन सो चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज लर्न टू लिव एंड ग्रो टुगेदर। इतने सारे हर्डल्स होने के बावजूद भी, इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, बच्चे जो है वो अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, एक साथ पढ़ते लिखते हैं और बड़े होते हैं। हार्डशिप्स मेक ब्रदर्स ऑफ अस ऑल, और यही सारे प्रॉब्लम ही आपस में एक दूसरे में एक कनेक्टिविटी बनाती है, और ये हार्डशिप्स ही है, ये तकलीफ ही है जो उनके लाइफ में आगे बढ़ाती है। The census tells us that 2 in every 5 of the population is in the age group of 5 to 15. तो क्या बोल रहे सेंसस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस, जो ये काउंटिंग होता है ना बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, ये आपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। सेंसस का मतलब होता है कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आते हैं और घर पे आपके घर में आके आते हैं और पूछते हैं आपके घर में कितने मेंबर है, कितने छोटे बच्चे हैं, ऐसा किसको काउंटिंग करते हैं, और बाद में सरकार को पता चलता है कि कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेंसस। तो क्या बोले, ये जो काउंटिंग होता है, ये जो सेंसस है, यही बताता है कि दैट 2 in every 5 ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन के 2 in every 5, मतलब हर पांचवा बच्चा जो है वो क्या है, कौन से ग्रुप का है, 5 to 15 ईयर का बच्चा ही है, यानी इतने सारे बच्चे हमारे देश में हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ऑन द वे टू स्कूल, यानी मान के चलो कि हमारी आधी जनसंख्या, आधी पॉपुलेशन जो है वो रोज स्कूल जाती है। एंड हियर आई स्टैंड एट माई विंडो वॉचिंग सम ऑफ देम पास बाय, और अब आज मैं खड़ी हूँ अपने विंडो में, अपनी खिड़की के पास खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ इनको, बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों को, लड़के और लड़कियों को देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, बिग एंड स्मॉल, बड़े बच्चे छोटे बच्चे, सम स्क्रफिंग सम स्मार्ट। क्या स्क्रफिंग का मतलब, जो गंदे, क्योंकि ये रस्किन बॉन्ड क्या है, वो छोटे से गांव में हिली एरिया में देख रहे हैं बच्चों को, तो क्या बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों के तो ड्रेस बहुत ही गंदे हैं, बट नेवर माइंड, वो उसको माइंड ही नहीं करते। सम स्मार्ट, लेकिन कुछ बच्चे उसमें से बहुत अच्छे भी होते हैं। सम मिसचीवियस, कुछ बहुत ही शैतान होते हैं, शैतानी करते हुए जाते रहते हैं, कूदते फांदते हुए जाते हैं। सम सीरियस, कुछ बच्चे एकदम सीरियस होते हैं, अभी मैंने बताया था इंट्रोवर्ट है ना, उन्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता है, सीरियस रहते हैं, है ना, मजाक मस्ती पसंद नहीं है, तो कुछ सीरियस भी होते हैं, बट ऑल गोइंग समवेयर, और सबके सब कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो भी जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जगह, और वो कहाँ है, होपफुल, और वो कहाँ है, स्कूल जा रहे हैं, होपफुली टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। यही सोच के सारे बच्चे जा रहे हैं कि आगे चल के इनका लाइफ बेहतर से और भी बेहतर होगा। तो ऐसा रस्किन बॉन्ड ने क्यों कहा, ये इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चों बहुत सारे लाइफ में हर्डल्स आएगा, लेकिन आपको पढ़ाई बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए,
क्योंकि ये पढ़ाई ही है जो आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। अगर आपकी कंडीशन आज अच्छी है तो आप पढ़ लिख कर खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो, और अगर बहुत अच्छी है तो उससे भी बेटर हो सकता है ना। तो आपके लाइफ में कितने भी हडल हो, बारिश आ रही है, आपके शूज भीग गए हैं, या गाड़ी नहीं आ रही है, तो ये आपके एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। या मैं थक गया हूँ मम्मी, बहुत बोर हो रहा हूँ, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। एक बार कभी भी ऐसा लगता है तो एक बार ये स्टोरी को फिर से आप रीड करो, देखो आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, अगर बच्चे इतनी तकलीफ कर रहे हैं तो हम तो इससे कंपेयर में फार मोर बेटर है, तो हमें तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना ही चाहिए। So I hope you have understood this chapter. If you have any doubt regarding this chapter, kindly message me. I will definitely answer you. और मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन आंसर्स के लिए बोला है। Don't worry बच्चों, I will within few days I will definitely release question and answers too. So till then, bye bye to all of you.